अमृतांशु मिश्रा, प्रेजेंट सर। भावना अग्रवाल, नहीं है। गुलशन कुमार, गुलशन नहीं, गौतम कुमार, गौतम कुमार, प्रेजेंट सर। ज्योति सिंह, प्रेजेंट सर। ऋषिराज जायसवाल, प्रेजेंट सर। शिवा बिंद, शिवा बिंद, शिवांग सिंह, सुचिता जैन, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सौम्य रंजन कुंडू, यस सर। सुरभि यादव, ये सब नहीं है। विजय कुमार, यस सर। विजय राजोतिया, प्रेजेंट सर। प्रतीक सिन्हा, प्रेजेंट सर। प्रतीक सिन्हा प्रेजेंट सर। अभिनीत खरे, प्रेजेंट सर। अभिनीत खरे प्रेजेंट। गरिमा शर्मा, प्रेजेंट सर। निखिल प्रभात, प्रेजेंट सर। सुधांशु वर्मा, प्रेजेंट सर। पूजा प्रेजेंट। पूजा, प्रेजेंट सर। रवि, रवि प्रजापति, सौरभ कुमार, सूर्यभान सर। हेलो सौरभ कुमार, सूर्यभान कुमार, प्रेजेंट सर। हरीश्वर प्रसाद, प्रेजेंट सर। हरीश्वर प्रसाद प्रेजेंट सर। सुधांशु रंजन, प्रेजेंट सर। उत्कृष्ट, प्रेजेंट सर। अनिरुद्ध, प्रेजेंट सर। राज कपूर, यस सर। प्रेजेंट सर। रजत सिंह, प्रेजेंट सर। बच्चे रवि प्रजापति नहीं है। सियाबिंद और शिवांग सिंह, प्रेजेंट सर। कौन प्रेजेंट? शिवाबिंद सर। शिवांग सिंह, अलबाब अली नहीं है। नॉइज तो नहीं आ रही ना, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा कुछ कोई ऐसे तो नहीं आ रही, एक साउंड आ रहा है हल्का हल्का। तुम लोगों के इधर तो कोई ऐसे बैकग्राउंड नॉइज खास नहीं पहुंच रही ना? नो सर। नो सर। तो जस्ट नीड टू वेट। तुम लोगों के पास जो बुक है वो 300 पेज की होगी शायद। हमने कल डाउनलोड किया है, 632 पेज की पूरी कंप्लीट बुक है। ठीक है, वो आधी बुक थी शायद, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, लेटर बुक तो वही है सेम।
बट वो 327 कितने पेज तक का ही बुक था, वो आधा गायब था। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे सिंक्रोनस मशीन। ओके, हमने यहाँ पे इसको कुछ स्टडी किया भी था, तो इसको फिर से देख लेते हैं। तो देर आर 3 सेट ऑफ बाइंडिंग्स, AS, ES dash, VS, VS dash, and CS, CS dash. These are the conductors of winding. One coil side, suppose this coil side may have n number of turns. Okay, so here you can see these are the angles. Phi r is the angle of rotor field, IS is angle of the stator field. Okay, position, and position may change all the time, and theta r is the position of the rotor. This is position of rotor field, this is rotor speed, rotor position, rotor speed. Okay, and phi r is rotor field position. Okay, so there are 3 axes, and here in terms of bindings you want to see, and you have 3 phase bindings here, and these are the resistance and a number of turns in windings, and here the field winding is there. Okay, so VFT is input voltage, RFT is the resistance, and IFT is the current inside the field. Similarly, AI, AS, BS, and CS are 3 currents in the this equivalent circuit. This is the stator equivalent circuit, and this is the rotor equivalent circuit, that is wound rotor. Okay, that may have the 2 slip rings for feeding the power to the field. Okay, and this is the variable air gap, which may have some minimum value, some maximum value, depending on the position. Okay, so for the phi r equal to pi by 2, it should be -1, this is minimum, and when this is 0, this will be alpha 1 minus alpha 2, so this will be the maximum. So the air gap length will vary depending on the position of the stator field and rotor position. Okay, you can see here that phi s, ये क्या होता है, phi s and there is relation between phi r equal to phi s minus theta r, क्योंकि phi s स्टेटर फील्ड जो है जिस फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है, जिस पोजीशन जो भी है उसकी एडवांस पोजीशन है, और थीटा आर उसकी थोड़ा सा बैक साइड पोजीशन है, थोड़ा पीछे रहेगा. देयर विल बी डिफरेंशियल गैप इन द पोजीशन ऑफ द फील्ड. ओके, तो जितना भी वो लैग करेगा उसके अकॉर्डिंग एक फील्ड जनरेट होगा. फील्ड भी सिंक्रोनस स्पीड से मूव करेगा, but there will be the orientation angle between the field axis and rotor axis. Okay, so this is phi r, and it will also rotate with the according to the synchronous speed.
तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि यू हैव रिप्लेस्ड फाई आर फ्रॉम फाई एस माइनस थीटा आर. So here 2 phi r has also been replaced according to this formula. So here minimum and maximum values are given. In case this is cylindrical rotor and there is uniform air gap length, this term is assumed 0. So always alpha 1, only one term will be there. Okay. Alpha 2 is the cross direction and alpha 1 is the direction in the axis side. Okay. So here according to the normal formula you have Br equal to mu 0 mmf upon g as I have told you. Okay. ये कैसे आया तुम लोगों को पता है? ये Br into AR equal to flux. Flux is equal to mmf upon reluctance. Okay. And reluctance equal to क्या होता है? This is G upon mu 0 A. ठीक है. तो अगर हम रिलक्टेंस की जगह इसको रख देंगे इस टर्म को, तो यहाँ पे आ जाएगा AR और mu 0 and here you can see G. तो ये AR और AR कैंसल हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा ये टर्म. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर? यस सर. तो अगर हम this is the function of mmf is a function of phi s. Similarly, the g is the function of the rotor position as well as field. तो ये रोटर पोजीशन जो स्टेटर mmf है that is not the function of rotor position. वो तो जहाँ भी energize करेंगे वहाँ मतलब energization is going to be in a synchronous speed and there will be synchronous position phi s. So depending on the synchronous position, the mmf will have only the phi s. Okay, so mmf is function of phi s and the air gap length will be varying because this is non-cylindrical type or salient pole type. So this will depend on the rotor position and field position, mutual position. Okay, कहाँ पे energized है? अगर सोचो कि you can see here that you see the field winding is energized here. Okay, and this is phi s. Okay, and your rotor is here. ठीक, रोटर यहाँ पे है तो उसके हिसाब से जो इसका जो रिलक्टेंस होगा, द रिलक्टेंस बिटवीन दिस पोजीशन इज वेरिंग, वेरी हाई रिलक्टेंस. ओके, और यहाँ पे क्या है? रिलक्टेंस बहुत कम है. ठीक, तो जो reluctance है, the reluctance of the air gap length will also depend on the field position as well as rotor position. ये ऐसा नहीं है कि ये म्यूचुअल है, क्योंकि एयर गैप लेंथ हम किसके मेजर कर रहे हैं? स्टेटर से रोटर के बीच का. स्टेटर से रोटर के बीच का इसलिए कि जो इनर्जाइजेशन है वो स्टेटर में है और फील्ड जो है वो रोटर में है. और जो टॉर्क बनता है दैट बोथ डिपेंड्स ऑन द एनर्जाइजेशन एंड द रोटर फील्ड. तो एयर गैप लेंथ प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो द फंक्शन ऑफ
phi s and theta are the magnetic flux density is given by this equation. Now you can see here we can replace MMF of AS as G has been replaced by this formula, and mu 0 into MMF is number of turns into current. तो जो जैसे सपोज वी आर टेकिंग एनी पार्टिकुलर वाइंडिंग फील्ड AS, फील्ड वाइंडिंग A, ओके, स्टेटर फील्ड, एक स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड हम एनर्जाइज करते हैं, वी आर वेरिंग ऑल द टाइम विद सिंक्रोनस स्पीड, तो उसका एनर्जाइजेशन चेंज होता है विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द 3 फेज सप्लाईज। तो अगर फेज ए में करंट आई है तो उसका जो MMF है वो हमने पिछली बार उसमें पिछले इक्वेशंस में हमने रिड्यूस किया था कि NS/2 IAS cos phi s, ओके, क्लियर। तो ये MMF इंटू ये 1/G phi s माइनस phi r, तो 1/G phi s माइनस phi r इज इक्वल टू दिस टर्म, यहाँ से हमने निकाला। सिमिलरली अगर हम बी के लिए निकालते हैं, फेज बी के लिए, तो फेज बी के लिए भी हमारा क्या होगा, एयर गैप लेंथ विल वेरी लाइक दिस, ठीक है, और जो फेज बी का जो करंट है, ओके, वो ये होगा, यहाँ पे NS/2 cos phi s minus 2 pi by 3 is the number of effective number of turns and IBS is the current in field B, क्लियर है। तो जब भी हम यहाँ पे cos phi s एक में लेते हैं टर्न एक वाइंडिंग में, तो उससे 120 डिग्री जो वाइंडिंग होगी उसमें phi s माइनस 2 pi by 3 लेंगे, ओके, इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स और उस फेज का करंट, क्लियर, क्योंकि हमने यहाँ दिखाया था आपको पेज नंबर, इफ यू हैव द बुक यू कैन सी द पेज नंबर 44, इक्वेशन 1.4 17, 1.4 18, 1.4 19, तो उसमें जो MMF है फेज ए, फेज बी, फेज सी का, वो दिखाया है, क्लियर, क्योंकि इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहे हैं, NS/2 cos phi s, NS/2 cos phi s minus 2 pi by 3, ओके, तो और जो फेज करेंट्स हो गई IAS IBS, ओके, तो सिमिलरली फेज सी के लिए लेंगे, दिस इज अज्यूम दैट this is flux density in case all other currents are zero, only we are considering the IAS ICS, यहाँ पे IBS बस हमने लिया था, तो टोटल जो फ्लक्स डेंसिटी है that will be the sum of the flux density due to the all currents, ओके। तो ये तीसरा फ्लक्स डेंसिटी हमने निकाल लिया फेज सी का, यहाँ तक क्लियर है, एनी कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब सिमिलरली जो है इसका एक MMF का फार्मूला है फील्ड वाइंडिंग का, ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग में MMF का वो है कि व्हाट एवर द डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन जो डायरेक्ट एक्सिस है, डायरेक्ट एक्सिस से उसका जो एंगल है phi r, ठीक है, फील्ड अगर
फील्ड की एक्सिस अगर हम ले रहे हैं तो डायरेक्ट एक्सिस से 0 डिग्री में है, रोटर के डायरेक्शन में है, तो वो मैक्सिमम MMF होगा। फाई आर इक्वल टू 0 मतलब रोटर का जो हम फील्ड ले रहे हैं रोटर का, फाई आर इक्वल टू 0 होने की कंडीशन में क्या होगा कि रोटर जो जो भी एंगल है उसकी थीटा आर, ठीक है, तो सेम डायरेक्ट एक्सिस में है। ओके, तो अगर फाई आर 0 है मतलब अगर सपोज कि स्टेटर सप्लाई ऐसे चेंज हो रही है और रोटर वहीं पर है, तो सेम उसी स्पीड से फाई एस भी चेंज हो रहा है, फाई आर भी चेंज हो रहा है। ये फाई एस है स्टेटर का, ये फाई आर है रोटर फील्ड, और ये थीटा आर। तो फाई आर इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि ये जो थीटा आर है सेम उसी डायरेक्शन पर, यहीं पे इस डायरेक्शन में मैक्सिमम MMF होगा फील्ड वाइंडिंग का इन द डायरेक्ट एक्सिस, तो दैट इज अ साइनोसोडल फंक्शन। क्लियर? इसमें हमने फील्ड का इंडक्टेंस निकाला भी था पिछले इक्वेशन में, आप देख सकते हैं। ये सिंपल साइनोसोडल फंक्शन है, मीन्स यू कैन सी दैट अगर हम ये डायरेक्ट एक्सिस मानते हैं फील्ड की, ठीक है, और ये क्वाड्रेचर एक्सिस हम मानते हैं, तो हम अगर 0 डिग्री में जाते हैं तो यहाँ मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी मिलेगी, मैक्सिमम MMF। ओके, ये मान लो कंडक्टर्स हैं, वी आर जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड बाय द कंडक्टर्स। ओके, तो यहाँ पे जो ये एक्सिस है डायरेक्ट एक्सिस, फाई आर इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट होगी। अगर हम सोचें कि अब क्रॉस डायरेक्शन में हम जाते हैं तो देयर विल बी 0 MMF। ओके, और यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम MMF। क्लियर? तो जो रोटर फ्लक्स जो एंगुलर पोजीशन है रोटर फील्ड की एंगुलर पोजीशन एक तरह से जो स्टेटर फील्ड रोटेट होने के कारण इस कंडक्टर्स में फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कट भी करेगा, वो एक फील्ड जनरेट कर सकता है। ये फील्ड जो स्टेटर का फील्ड है फाई एस, वो इस कंडक्टर को कट करके इसमें भी MMF जनरेट कर सकता है। ओके, तो यहाँ से हमने रोटर का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकाला है, एंड हियर आल्सो ए टर्म इज देयर ऑफ द रिलक्टेंस एयर गैप लेंथ, this is 1 upon g, this term, and this is the rotor effective number of turns into field current. Okay, magnetic rotor field current IFD, and effective number of turns in field winding. तो हम देख सकते हैं कि we want to calculate this flux density. We want to calculate the flux overall the half of the periphery, मतलब जैसे कि हम यहाँ पे n दे रहे हैं, अगर ये स्टेटर फील्ड की हम बात करें और हम यहाँ पे हमारा n है और यहाँ पे हमारा s है, हाफ पार्ट इज लोअर पार्ट एंड हाफ पार्ट इज अपर। तो अगर हम इंक्रीमेंटल एक छोटा सा एरिया लेते हैं इसका स्टेटर का, तो ये d थीटा है एंगल। ओके, d
थीटा ले सकते हो या कि एप्सिलॉन ले सकते हो, कुछ भी ले लो। तो यहाँ से एक डिफरेंशियल एरिया है, ये आर्क हो गया और ये लेंथ आप रोटर हो गई। तो जो एरिया है वो क्या कहलाएगा, फ्लक्स इक्वल टू फाई इंटू बी इंटू ए। तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एल इंटू ये वाला जो आर्क है आर डी एप्सिलॉन मान लो, ठीक है। तो एप्सिलॉन हम लेंगे, सपोज कि फील्ड हमारा कहाँ पर है, यहाँ से, ठीक है। तो हाफ अगर फील्ड पूरे ट्रेवर्स करता है तो एक तरफ जब तक तो 0 से लेकर पाई तक होगा तब तक वो क्या करेगा, एन रहेगा, फिर पाई से उधर जाएगा तो ऐसे। तो अगर एक पोल के द्वारा जनरेट जो फील्ड है उसको हम कैलकुलेट करें तो फाई एस जो भी एंगल है फील्ड का, और फाई एस प्लस पाई, हम 0 टू पाई भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। 0 टू पाई से कैलकुलेट कर लें तो वही आ जाएगा। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। तो यहाँ बी हो गया, आर एल हो गया, और ये वाला टर्म हो गया ये, और फाई एस से फाई एस प्लस पाई तक हम इंटीग्रेट करते हैं। सो वी गेट द फ्लक्स इन फ्लक्स पर पोल, ठीक है। ये फ्लक्स पर पोल हमने निकाला है। जैसे कि अगर एक वाइंडिंग है तो इनर्जाइज होगी, अगर फेज वाइंडिंग ए है ये इनर्जाइज हुई तो आधे पार्ट में एन बनाएगा, आधे पार्ट में एस बनाएगा, ठीक है। तो एक वाइंडिंग एनर्जाइज होने तो 2 पोल बनते हैं उसमें। तो फ्लक्स पर पोल कितना आता है, 0 से लेके पाई तक के रीजन को हम पूरा इंटीग्रेट करते हैं इस एरिया में जितना ही फ्लक्स डेंसिटी है, क्योंकि यहाँ से फ्लक्स जाता है और नीचे के एरिया से निकल जाता है, या कि नीचे के एरिया से आता है ऊपर के एरिया से निकल जाता है। तो 0 से लेके पाई तक में एंटर होता है और पाई से लेकर 0 तक बाहर निकलता है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, क्लियर है ये? यस सर। हाँ, तो 0 से लेके पाई तक का एक रीजन होता है ये, ठीक। और अब यहाँ पे हम निकालते हैं कि हम ये देखते हैं कि वाइंडिंग्स आर कंसिडर्ड साइनोसोडली डिस्ट्रीब्यूटेड है वाइंडिंग, और मैग्नेटिक सिस्टम लीनियर है। सो इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड ऑल ओवर द कॉइल साइड्स विद सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। सेम डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे सपोज कि हम यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, ठीक है, और सभी में एक ही डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। तो जितनी भी कॉइल हैं सभी में एक डायरेक्शन में करंट होगी, वो ऐड होंगी। सो वी विल इंटीग्रेट, डबल इंटीग्रेट द होल सिस्टम। तो यहाँ पे एन फाई और डी फाई के साथ में फिर से इंटीग्रेट किया है ये, ओके। दिस टर्म हैज बीन डबल इंटीग्रेटेड। वैसे क्या होता है, एन फाई होता है फ्लक्स लिंकेज इक्वल टू एन एल आई और एन फाई। तो अगर फेज ए की हम एज्यूम करें तो सेल्फ इंडक्टेंस, लीकेज इंडक्टेंस ऑफ फेज ए, और मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस। तो मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस मतलब यहाँ से टोटल फ्लक्स लिंकेज से निकालेंगे।
सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो। यस सर। कितना मिनट लॉस हो गया हमारा? हेलो। कितने मिनट लगभग ये ऑफलाइन हो गया है ये? 2-3 मिनट। ठीक है। ये पता नहीं कंप्यूटर भी लैग मार रहा है, सडन बंद हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोड प्ले कर रहा है इस समय। 120% एफिशिएंसी पर चल रहे हैं सब। तो सिंपली यहाँ तक तो ठीक है ना? हमने क्या निकाला? जस्ट वेट।
तो तुम लोगों ने सही बता दिया कि हमारा जो है तो मंडे को 10 से 11 खाली रहता है ना। तो कभी अगर हमको ज़रूरत पड़ सकती है तो 10-11 के स्लॉट हम तुम लोगों से बात करके और यूज कर सकते हैं, अगर कभी शिफ्टिंग जरूरत पड़ी किसी लेक्चर की तो। क्यों, सही है। तो ये आप देख सकते हैं, यू कैन फाइंड द फ्लक्स फ्रॉम हियर and this is the double integral with angle phi, and phi has been taken all over the 0 to phi, okay, whole stator periphery. So this is the double integral. Here phi s has been replaced by this, okay, this term for phi s, and the double integral with respect to phi s. जो भी स्टेटर जो फील्ड है, फील्ड इज ऑलवेज चेंजिंग, एंड द पोजीशन ऑफ द फील्ड एक्सिस इज ऑलवेज चेंजिंग फाई एस, ओके। सो फाई एस इज पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ स्टेटर फील्ड which is rotating in synchronous speed, and this is the effective number of turns, which is a function of phi s, as well as it may depend on the theta r. तो ये phi s, suppose कि we are energizing the field A winding, so at phi s what is the effective number of turns? Suppose it is changing, I had told you the at 0 axis the effective number of turns is maximum as. Here it may add the conductor, near the conductor it becomes 0. So this is the function of phi s. And here if you take the total flux linkage for phase A, then leakage inductance into leakage current, into phase current. तो यहाँ पे लीकेज इंडक्टेंस और फेज करंट का पूरा फंक्शन ये हो गया फ्लक्स लिंकेज, ओके, लीकेज फ्लक्स लिंकेज एंड लीकेज और लिंकेज, ठीक है। टोटल जैसे कि एक वाइंडिंग है वो एक फील्ड जनरेट कर रही है, तो इट विल आल्सो लिंक टू द अनदर वाइंडिंग, इट मे लिंक टू द फील्ड और इट मे लिंक टू द other windings, and one of the component may be leaked, and again it without crossing to any other element it will return to the same winding. So this is the MMF flux linkage due to leakage inductance, okay, IAS, and this is the flux linkage due to the दिस वेरिएबल लेंथ, ओके। तो रोटर से स्टेटर के बीच में जो लिंक हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यू कैन सी IAS हियर, एंड दिस टर्म इज फॉर द GIAS, एंड दिस इज म्यू जी, और वो वाला MMF का पूरा टर्म। तो ये अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं, तो these two terms are here squared, and you can see the pi comes from here, okay, and alpha 1 minus cos 2 theta r वो यहाँ से आ जाएगा। ये सालन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब when you simplify this you have integration with respect to this, तो एक इसके टर्म्स में सिंप्लीफाई होगा, ये वाला एक टर्म है कास एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे आपने क्या किया है, IS और ये जो आपने लिया ये, ठीक है, ये वाला टर्म तो एक हो गया, और ये BS का टर्म, फील्ड ये फ्लक्स का टर्म हो गया। तो फ्लक्स का टर्म पूरा इतने से आता है, क्लियर है। तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म निकलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंडक्टेंस है
वो लेमडा इक्वल टू, अगर लेमडा ए एस की बात करें हम, ए एस, तो ये क्या होता है, एक फ्लक्स लिंकेज पार्टिकुलर वाइंडिंग का होता है, लीकेज इंडक्टेंस, लीकेज फ्लक्स लिंकेज and linking to the another winding, linking to the stator and linking to the rotor। तो स्टेटर में दूसरी वाइंडिंग्स को लिंक कर सकता है और रोटर में जो है तो रोटर फील्ड को लिंक कर सकता है। तो एल ए एस मतलब स्टेटर में फेज ए के बीच में इंडक्टेंस, ओके, दैट विल बी इक्वल टू द लीकेज इंडक्टेंस प्लस सेल्फ इंडक्टेंस, लीकेज इंडक्टेंस प्लस मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस ऑफ वाइंडिंग ए, तो मैग्नेटाइज किस वजह से हो सकता है, मतलब कि वो आपस में जो रिएक्शन होता है दो वाइंडिंग्स के बीच में या स्टेटर रोटर के बीच में, तो मैग्नेटाइजिंग हो गया, जो यूजफुल वर्क में यूज होता है। और एक होता है लीकेज इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस हो गया, ये लीकेज इंडक्टेंस हो गया, क्लियर। ये कैसे निकला है, सिंपली इस टर्म को हमने जब देखा, ये टर्म, तो यहाँ पे अगर हम आई ए एस हटा दें, तो ये जो लेमडा ए एस में आई ए एस हटाने पे वो सिंपली एल ए एस आई ए एस ऐसे होता है, लेमडा ए एस इक्वल टू, तो लेमडा ए एस इक्वल टू इतना किया, तो हमने एल ए एस एज्यूम करना है, तो वो इसके बराबर हो जाएगा, ए एस हट जाएंगे तो एल एल एस प्लस ये टर्म पूरा, क्लियर। तो दिस इज द लीकेज इंडक्टेंस, दिस इज द मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस ऑफ वाइंडिंग ए, ओके। अब यहाँ पे अगर हम दूसरी वाइंडिंग की करंट के इफेक्ट से जो भी फ्लक्स लिंकेज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो हमारा जो फील्ड है फ्लक्स ड्यू टू द नेक्स्ट वाइंडिंग, दूसरी वाइंडिंग से जो हमारा फ्लक्स बन रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस वाइंडिंग फेज ए, तो फेज ए में नंबर ऑफ टर्न्स ये हो गए, इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स, और फेज बी में हमने जो एमएमएफ एनर्जाइज किया, फ्लक्स डेंसिटी बनी, उससे फ्लक्स जनरेट हुआ, तो हमने पूरा इसको कैलकुलेट किया, एन फाई निकाला, एन फाई, ओके। और डबल इंटीग्रेट इसलिए करते हैं कि जितने भी सेम पोलैरिटी ऑफ कंडक्टर्स हैं, जिसमें सेम पोलैरिटी जनरेट हो रही है, तो जहां भी हैं होल पेरिफेरी में, वो दैट विल बी एडेड टुगेदर, तो फाई एस हम लेते हैं। तो एन फाई डी फाई, जो कि यहाँ से हम बी इंटू ए फ्लक्स डेंसिटी इंटू वो निकालते हैं फाई, तो दिस इज द फॉर फेज ए एंड दिस इज फॉर फेज बी, क्लियर। तो यहाँ पे अब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो यहाँ पे हम लीकेज इंडक्टेंस नहीं लेंगे, हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात ले रहे हैं केवल। तो आपस में बाइंडिंग का इंटरेक्शंस क्या हैं उसके बारे में, तो हम सेल्फ जो लीकेज इंडक्टेंस है, जो कि ये यहाँ से रिटर्न होके यहाँ आ जाता है, तो जो भी इस वाइंडिंग का हम लेंगे केवल, अगर हम ए एस की बात करें आपस में लिंकेज, तो लीकेज और जो ये लिंक होके और दूसरे पाथ से होके आता है वो, लेकिन हम जब इसकी बात करते हैं तो देयर विल नॉट बी कंसिडर्ड लीकेज इंडक्टेंस, तो यहाँ पे केवल यही टर्म आएगा, यहाँ पे लीकेज इंडक्टेंस का टर्म नहीं होगा, ये एडिशनल जो है, दिस टर्म विल नॉट बी देयर,
तो केवल हम यहाँ से जो कैलकुलेट करते हैं फेज ए का इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स और फेज बी का जो फ्लक्स है, और इंटीग्रेट ऑल ओवर द पेरिफेरी। तो LAS/BS हमारा निकलता है ऐसे -NS/2 द होल स्क्वायर π/2, और ये पूरा इसको इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल करेंगे तो ये निकलेगा। ओके, अगर हम फेज सी की बात करें तो ऐसे ही यहाँ फेज सी की करंट ले लेंगे IC। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे व्हाट इज द इम्पैक्ट बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज ए एंड फील्ड। तो फेज ए और फील्ड के बीच में क्या होता है, कौन सा इंडक्टेंस होगा? AS स्टेटर में फेज ए और रोटर में फील्ड वाइंडिंग। ओके, ASFR। ओके, तो ASFR यहाँ से जो डी एक्सिस है, हम डी एक्सिस ही बोल सकते हैं उसको, तो ASFD हमने बोल दिया सिंपली। ओके, फील्ड इन द डायरेक्ट एक्सिस। ओके, और हम डी एक्सिस इसलिए कहा हमने कि ये मैग्नेट का वो है, ठीक है। और जहां हम रोटर की बात करते हैं, आर की बात करते हैं, FR है सपोज, तो वो एनर्जाइज वाइंडिंग्स हो गई। यहाँ ASFD इज, यहाँ NS/2 द नंबर ऑफ टर्न्स इन फेज ए एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन फेज वाइंडिंग बी। तो यहाँ NS/2 NF/2 और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो α1 + α2 बाई ये साइन थीटा आर। इस टर्म को आप सिंप्लीफाई करेंगे जब पूरा, तो यहाँ पे इतना ये टर्म आएगा। ओके, सो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन फेज ए एंड फील्ड इन द रोटर। ओके, फील्ड वाइंडिंग और फेज ए के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ से आप भी देख सकते हैं कि अगर हम केवल फील्ड वाइंडिंग का निकालते हैं तो फील्ड वाइंडिंग का लीकेज इंडक्टेंस और फील्ड वाइंडिंग का सेल्फ मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस, तो हम ये जो फील्ड वाइंडिंग का इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स है वो, और फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो ये कैलकुलेट करते हैं, और फिर दोनों को इंटीग्रेट करते हैं π/2 से -π/2 ये तक। मतलब यहाँ से ये है, आप ये देख सकते हैं कि सपोज कि ये हम इसको φR = 0 है यहाँ पर, और यहाँ से π/2 लिए हैं सपोज, और π/2 से प्लस हम पाई और करते हैं, ठीक है। तो ये 3π/2 आता है। तो हम जो इंटीग्रेट करेंगे फील्ड, वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं, ये π/2 से लेके और 3π/2 सिमेट्रिकली, मतलब हमने डिवाइड कर दिया N और S को एक सिमेट्रिकल लाइन से। तो इसका जो फील्ड है, फील्ड यहाँ मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे मिनिमम होगा। तो जो टोटल इफेक्टिव फील्ड है दैट विल बी द इंटीग्रेशन ओवर द π/2 और 3π/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम π/2 और 3π/2 से ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये लीकेज फ्लक्स हो गया, लीकेज इंडक्टेंस एंड द फील्ड मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस LM, ओके, और LMR ऐसा भी जूम कर सकते हैं। तो अब इसमें एज्यूम किया है कि हम कुछ टर्म्स को ऐसे सिंपल LA और LB एज्यूम कर लेते हैं,
ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर LAS क्या हो जाता है, LAS इज LS प्लस LA माइनस LB cos 2 थीटा r। मतलब इसने कुछ टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लिया है, कुछ ऐसे जूम कर लिया है कि ये टर्म्स इसके LA के बराबर हमें जूम कर लेते हैं। ठीक है, बाइंडिंग्स में ये टर्म्स आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये टर्म्स भी आया हुआ है। तो जहाँ भी ये टर्म इतना है उसको हम LB रख देंगे, तो LAS इक्वल टू LLS प्लस LA माइनस LB cos 2 थीटा r। अगर हम बात करते हैं कि अल्फा 2 इज 0, मतलब हमारा जो सिलेंड्रिकल वाइंडिंग है उसमें और यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम का कोई चक्कर नहीं है, G इज कांस्टेंट, लेंथ इज कांस्टेंट एंड दिस इज इक्वल टू 1/α1। तो उस कंडीशन में अल्फा 2 इक्वल टू 0, ठीक है, कोई अल्फा 2 वाला टर्म होगा ही नहीं यहाँ पे, अल्फा 2 इक्वल टू हम 0 रख देंगे। क्लियर? तो ये टर्म हमारा 0 हो जाता है, ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा उस कंडीशन में जब हम सिलेंड्रिकल रोटर की बात करते हैं, ये टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएंगे सभी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेंड्रिकल रोटर। तो 2 थीटा वेरिएशन होगा नहीं, यूनिफॉर्म एयर गैप मशीन है, तो LB इक्वल टू 0 हम मान लेते हैं यहाँ पे, अल्फा 2 इक्वल टू 0 यू कैन सी हियर। So overall you can see just you have given the source voltage VAS and RAS IAS plus d lambda AS upon dt. This is the total voltage equation for phase A winding. Now the flux linkage lambda AS can be given by the self inductance due to the current in phase A itself, the mutual inductance LAS/BS due to the current in phase B and effect in phase A, the mutual inductance LAS/CS due to the current in phase C and its impact on phase A. Simply the field current also impacts the flux of winding A. So this is the mutual inductance between field and phase A, stator field A, stator winding A and field winding in D axis, okay, या कि फील्ड वाइंडिंग इन रोटर, तो DC फील्ड भी कह सकते हैं इसको, DFD DC फील्ड। तो यहाँ पे जो भी फ्लक्स है, जो भी फील्ड करंट है, दैट विल अफेक्ट द फ्लक्स लिंकेज सेटअप बाय फेज A वाइंडिंग। ठीक है, अगर सपोज कि एक ही डायरेक्शन में दोनों वाइंडिंग का फ्लक्स है, मान लो रोटर और स्टेटर दोनों का है, तो आपस में ऐड हो जाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ऐसे अगर अपोजिट है तो कम हो जाएगी, मीन्स इट म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द वाइंडिंग इन अदर करंट इन अदर वाइंडिंग। ओके, ऐसे ही हम अगर BS की बात करें, फ्लक्स लिंकेज इन फेज B, तो क्या होगा, LBS AS, मतलब दूसरी वाइंडिंग का करंट है ये। यहाँ पे BS है तो उसी वाइंडिंग का करंट लिया हुआ है, यहाँ पे BS CS है तो दूसरी वाइंडिंग का करंट है LCS ICS। ओके, अब फील्ड और उस वाइंडिंग के बीच में, BS और फील्ड के बीच में फील्ड करंट इफेक्ट कर रहा है। सिंपली लेमडा CS लिया, CS AS दूसरी वाइंडिंग के करंट कैसे इफेक्ट करते हैं, उसी वाइंडिंग के करंट को, उसी वाइंडिंग के फ्लक्स लिंकेज को यहाँ से। सेल्फ वाला है CS जो उसी वाइंडिंग का करंट, उसी वाइंडिंग के इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस। दीज आर द म्यूचुअल इंडक्टेंसेस बिटवीन फेज A and B and C. This is the mutual inductance between A and C. This is the mutual inductance between field and phase C. यहाँ पे फील्ड का जो टोटल फ्लक्स लिंकेज है वो सभी करंट से भी अफेक्टेड होगा। तो
फेज ए के करंट के कारण फ्लक्स, उसका फ्लक्स लिंकेज कैसे इफेक्टेड होता है, फेज बी के कारण कैसा इफेक्टेड होता है, फेज सी के कारण कैसा होता है, और उसकी खुद की करंट के द्वारा फ्लक्स लिंकेज कैसे इफेक्टेड होता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? हो कि नहीं, तुम लोग पढ़ रहे हो भी? यस सर। ठीक है, तो इसको खत्म करने दो, फिर हम डिजाइन करते हैं तुम्हारा क्विज। तो इंडक्शन मशीन में सिंपली क्या हुआ, ये इंडक्शन मशीन में प्राइमरी में भी स्टेटर में भी फील्ड है, ओके, ns स्पीड से रोटेट करता है, और ये एक स्लिप के साथ में रोटर भी रोटेट करता है। तो रोटर वाइंडिंग R से और स्टेटर वाइंडिंग S से लाइन है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ भी वही चीजें हैं, सिलिंड्रिकल रोटर है, इसलिए देयर इज नो वेरिएबल एयर गैप लेंथ। यहाँ पे देखो दो वाइंडिंग के लिए जो इक्विवेलेंट सर्किट दिया है, स्टार कनेक्शन दिया है, तो रोटर का सर्किट ये हो गया, स्टेटर का सर्किट ये हो गया, एंड द टॉर्क इज द म्यूचुअल इफेक्ट ऑफ दिस स्टेटर एंड रोटर एमएमएफ्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कांस्टेंट एयर गैप की कंडीशन में अल्फा 2 = 0 है, दिस इज नॉट द वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, ओके। केवल अल्फा 1 टर्म रहेगा तो वो एक फिक्स एयर गैप लेंथ ओवरऑल पेरीफेरी में रहेगी। AS is the sum of leakage inductance and magnetizing inductance of स्टेटर वाइंडिंग फेज A, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू LA, क्योंकि LB वाला टर्म जो है माइनस LB cos समथिंग आता है, तो that term is 0 because this is cylindrical rotor, so LLS plus LA इतना ही आएगा AS में, and this is LMS equal to this term जो कि निकाला गया था, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपने देखा था कि जब हम AS/BS की बात कर रहे थे, देयर वाज नो सेल्फ इंडक्टेंस, -1/2 LA ऐसा निकल रहा था, -1/2 LA और माइनस LV वाला टर्म था उसमें, ओके। तो आप यहाँ पे सिंपली ये LMS की वैल्यू हम रखते हैं, दैट इज दिस वैल्यू। तो LAS/BS क्या आता है, NS द होल स्क्वायर, NS/2 द होल स्क्वायर π/2, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर हम आपस में रोटर और फेस ए रोटर, मतलब ये वाइंडिंग है, रोटर वाइंडिंग है, दिस इज नॉट द स्टेटर वाइंडिंग, रोटर में जो फेस ए वाइंडिंग है, ठीक है। तो उसी फेज की आपस में क्या इंडक्टेंस है, तो मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस उसी फेज का, और उसी फेज का लीकेज इंडक्टेंस उसी फेज का, और मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस उसी फेज का, ठीक है। और ये सिंपली उसी फार्मूला से आता है, ये LA है एक तरह से, ठीक है। तो LMR = LA और LB का टर्म 0 होगा, बिकॉज वेरिएबल एयर गैप लेंथ नहीं है। और आपस में दोनों जो वाइंडिंग है स्टेटर रोटर में ही AR और BR, ठीक है। AR BR के बीच में जो वो है इंडक्टेंस है, दैट इज 1/2 म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द रोटर वाइंडिंग्स, रोटर वाइंडिंग के बीच मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस जो है आपस में, जिससे कि 120 डिग्री पर है, ये एक फेज है, ये दूसरा फेज है, 120 डिग्री में तीसरा फेज है, इसके बीच में एक मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस होगा, इसके बीच में एक मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस होगा, ठीक है। और ये और एक खुद का एक सेल्फ लीकेज होता है, तो लीकेज वाला तो उसी में आके लिंक होगा, तो उससे कोई मतलब है नहीं। जब हम दूसरे की बात करते हैं A से B की, तो केवल वो मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस की ही बात करेंगे हम,
तो सिंपली जो है, अब स्टेटर और रोटर की बात है, स्टेटर रोटर के बीच में, तो जो स्टेटर रोटर के बीच में मैक्सिमम इंडक्टेंस होता है और फिर वो बदलता है। अगर हम सेम जो कॉइल्स हैं फेज ए और फेज बी, अगर ये रोटर की फेज ए और स्टेटर की फेज ए सेम डायरेक्शन में है, थीटा आर इक्वल टू 0, तो वो मैक्सिमम इंडक्टेंस हो जाएगी। तो स्टेटर टू रोटर जो मैक्सिमम इंडक्टेंस है वो वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सिंपली अगर हम 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग की बात करें, तो जब भी 120 डिग्री मूव कर जाएगा थीटा आर, तब जाके वो मैक्सिमाइज होगा। मतलब 120 डिग्री मूव करने पर थीटा आर -2π/3 इक्वल टू 0 जब हो जाएगा, तो वो जब -2π/3 या +2π/3 में जाएगा तो वहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो ये ASBR हो गया, ASCR हो गया यहाँ पे, ये टर्म्स हमारे हैं इंडक्टेंसेस। ठीक है, सभी लोग हैं ना आज? ये एक कौन है, एक अलबावली और यस सर। शिवांग सिंह नहीं है? शिवांग सिंह आया यस है? सर, आ गए। यस सर। रवि प्रजापति? यस सर, प्रेजेंट सर। अटेंडेंस नहीं हुई थी सर, 9/4 पर ज्वाइन हाँ, किया। तो मैं डाल रहा हूँ इन्हें। मैं अब रिजाइन करता हूँ। ये सिंपल थोड़ा सा है, इसको देख लो, क्योंकि दिस इज द लास्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो सिंपल ये जो हमारा इक्वेशन है, हमने लेमडा AS निकाला, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट पूरा वोल्टेज इक्वेशन कैसे निकलता है, CS का फ्लक्स लिंकेज, तो इसमें वही है LAS LBR, आपस में AS BR, ठीक है, AS BS। तो जो टोटल कोई भी जैसे ये है, तो आपस में तीनों वाइंडिंग का स्टेटर के साथ में, फिर स्टेटर टू रोटर के साथ में देखो, AS AR IAR, ASBR IBR, ASCR ICR। मतलब अगर 3 फेज स्टेटर में 3 फेज रोटर में है, तो सेल्फ का हो गया, स्टेटर की ही दूसरी 2 वाइंडिंग्स के करंट के कारण हो गया, रोटर की तीनों करंट के कारण हो गया। ठीक है, तो टोटल जो फ्लक्स लिंकेज है किसी वाइंडिंग पे, जितनी आसपास वाइंडिंग है उस इम्पैक्ट करेंगे उसको। ठीक है, तो ये वो है नॉमेरिकल है, फिर इसको बाद में देखा जाएगा। क्लियर है इतना? एनी कंफ्यूजन? यू स्टडी दैट अगेन। उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बारीकी से पढ़ो। और मैं इसको रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।